Hi friends! Today I will teach you the topic comparison. Comparison, big and small. This elephant is saying, I am big. ये जो elephant है ये कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ. Big का मतलब होता है बड़ा. This mouse is saying, I am small. I am small. Small का मतलब होता है छोटा. Let us learn more. This ball is smaller and this ball is bigger. This tree is bigger and this plant is smaller. This candle is small. This candle is big than this candle. This candle is bigger than both of these candles. And this candle is the biggest of all of these candles. This elephant is big. This elephant is small. This elephant is smaller than both of these elephants. And this elephant is the smallest of all of these elephants. Here is an activity based on the topic comparison solely. The first question says, color the smaller object red in each set. So as you can see, we have colored this ball red because this ball is smaller than this ball. We have colored this apple red because this is smaller than this fruit. Second question, take the bigger object in each set. The hot air balloon is bigger than this small balloon. So we have take the hot air balloon. This umbrella is bigger than this umbrella. So we have ticked this umbrella. The third question is match the following. This glass is small than these all objects. This is the biggest of all these objects. This jug is big. This jug is bigger. Now let's do the comparison between heavy and light. This bear is saying I am heavy. Heavy का मतलब होता है भारी. ये bear जो है ये इस monkey से भारी है मतलब heavy है. This monkey is saying I am light मतलब हल्का. ये जो monkey है ये इस bear से हल्का है light है. Let us learn more. This lock is heavier than this key. This key is lighter than this lock. ये जो ताला है ये heavier है इस चाबी से और ये जो चाबी है ये इस ताले से lighter है हल्की है. This cherry is lighter than the watermelon and this watermelon is heavier than the cherry. जो cherry है वो watermelon से हल्की है पर जो watermelon है वो भारी है वो heavier है cherry से. अब जैसे हमने बिग और स्मॉल में कंपैरिजन सीरीज़ पढ़ी थी बिग स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट स्मॉल बिग बिगर बिगेस्ट वैसे अब हैवी और लाइट में भी आ गई हैं. लाइट हैवी हैवियर और हैवीएस्ट. ये जो 1 किलोग्राम है ये इन सब से लाइट है हल्का है. 2 किलोग्राम जो है वो इससे हैवी है. 5 किलोग्राम इन दोनों से भारी है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे हेवियर. 10 किलोग्राम जो है वो सबसे हैवी है. इन तीनों से हैवी है ना तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैवीएस्ट. अब इसमें बस हैवी, कार लाइट, स्कूटर लाइटर, साइकिल लाइटेस्ट. बस इन सब से हैवी है. कार जो है वो बस से थोड़ी सी हल्की है इससे लाइट. स्कूटर जो है वो इन दोनों से हल्का है लाइटर.
साइकिल जो है वो इन सब से हल्की है, लाइटेस्ट. Now here is an activity based on the concept of heavy and light. Question number 1. Look at the objects given below and fill in the blanks using the words heavier, lighter. One has been done for you. हमें इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है और बताना है कि वो हेवियर है या लाइटर है. एक हमारे लिए किया गया. हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. एक है रेडियो, एक है टेलीविज़न टीवी और एक है मोबाइल फ़ोन. द मोबाइल फ़ोन इज़ लाइटर दैन टेलीविज़न. नाउ शिवन्या, यू विल आंसर द क्वेश्चंस विच आई विल आस्क. द रेडियो इज़ लाइटर दैन टेलीविज़न और heavier than television? Lighter. Very good. So we will write it down here. L I G H T E R. Lighter. The television is heavier than mobile phone or lighter than mobile phone? Heavier. Okay. H E A V I E R. Heavier. The television is heavier than radio or lighter than radio? Heavier. Okay, so the television is heavier than radio. The mobile phone is heavier than radio or lighter than radio? Lighter. Okay. Second question. Take the heaviest and cross the lightest. So we have been given 3 objects: feather, ball and car. हमें इनमें से जो भी सबसे ज़्यादा भारी है उसे टिक करना है और जो भी सबसे ज़्यादा हल्का है उसे क्रॉस करना है. हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. फेदर है, पंख, बॉल है, गेंद और कार है. अब शिवन्या, आप बताओ कि इन तीनों में से सबसे भारी कौन सा है, हेवीएस्ट कौन सा है? कार. ओके. और इन तीनों में से सबसे हल्का कौन सा है, सबसे लाइटेस्ट कौन सा है? पंख. वेरी गुड, फेदर. तो इसे हम क्रॉस कर देंगे. नाउ लेट अस कवर another topic of comparison which is long and short. This train is saying I am long. Long का मतलब होता है लंबा. आप देख सकते हो ना कि ये जो ट्रेन है ये इस ट्रेन से ज़्यादा लंबी है. तो ये कह रही है कि मैं लॉन्ग हूँ, मैं लंबी हूँ. एंड दिस ट्रेन इज सेइंग आई एम शॉर्ट. शॉर्ट मतलब छोटा. ये जो ट्रेन है वो इस ट्रेन से छोटी है, इसलिए ये कह रही है कि मैं छोटी हूँ. आई एम शॉर्ट. लेट अस लर्न मोर. दिस एरो इज शॉर्टर दैन दिस एरो. दिस एरो इज लॉन्गर दैन दिस एरो. दिस रोप इज लॉन्गर दैन दिस रोप एंड दिस रोप इज शॉर्टर दैन दिस रोप. ये जो एरो है वो इस एरो से छोटा है, पर ये जो एरो है वो इस एरो से लंबा है. ये जो रोप है वो इस रोप से लंबी है और ये जो रोप है वो इस रोप से छोटी है. वैसे अब इस शॉर्ट और लॉन्ग में भी कंपैरिजन सीरीज आ गई है. दिस कोम्ब इज़ शॉर्ट, दिस कोम्ब इज़ लॉन्ग, दिस कोम्ब इज़ लॉन्गर दैन बोथ ऑफ दीज कोम्ब्स and this comb is longest than all of these combs. This paintbrush is long. This paintbrush is short. This paintbrush
is shorter than both of these paint brushes, but this paintbrush is the shortest of all of these paint brushes. Activity: circle the girl with long hair. Shivanya, which girl is having long hairs? Very good. So we will circle it. Shivanya, in this image, which is short object? Very good. Which pencil is short? Very good. Question number 3. Match the following. Which this caterpillar is long, short, longer or longest? Very good. So we will match it with short. This caterpillar is long, short, longer or longest? Very good. This caterpillar is long, short, longer or longest? Very good. This caterpillar is long, short, longer or longest? Very good. Another topic of comparison is top and bottom. This boy is saying, I am at the bottom of the stairs. ये लड़का कह रहा है कि मैं स्टेयर्स के सबसे नीचे हूँ. बॉटम का मतलब होता है नीचे. दिस गर्ल इज सेइंग आई एम एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स. ये लड़की कह रही है कि मैं स्टेयर्स के सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे ऊपर वाली स्टेयर पर हूँ. टॉप का मतलब होता है ऊपर. नाउ एक्टिविटी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द टॉप. हमें उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जो ऊपर है, जो टॉप पे है. शिवन्या, इस फिगर में से, इस पिक्चर में से कौन सा ऑब्जेक्ट टॉप पर है? सबसे ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है? वेरी गुड. तो अब हम इसे सर्कल कर देंगे. इस पिक्चर में से कौन सी बुक टॉप पर है? गुड. तो अब हम इसे सर्कल कर देंगे. इस पिक्चर में से कौन सी चीज़ टॉप पर है? बॉल. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2. टिक द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट द बॉटम. अब हमें उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो सबसे नीचे है, जो बॉटम पे है. शिवन्या, इस पिक्चर में कौन सा बच्चा नीचे है? वेरी गुड. सो हम इसे टिक करेंगे. इस पिक्चर में क्या सबसे नीचे है? वेरी गुड. इस पिक्चर में से कौन सा जग सबसे नीचे है? वेरी गुड. अबव एंड बिलो. अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे. ये एरोप्लेन कह रहा है आई एम अबव मतलब ऊपर. दिस बर्ड इज सेइंग आई एम बिलो मतलब नीचे. एक्टिविटी. टिक द करेक्ट आंसर. द बर्ड. शिवन्या, you will tell. Bird is sitting above the fan or below the fan? Above. Very good. So we will tick above. This girl is sitting below the fan or above the fan? Below. Very good. ये गर्ल पंखे के नीचे बैठी है, पंखे के ऊपर नहीं बैठी है, इसलिए हमने बिलो को टिक किया. अब एक और सब टॉपिक कंपैरिजन का, इनसाइड और आउटसाइड. इनसाइड मतलब अंदर,
ये जो लॉयन है, ये जो शेर है, ये पिंजरे के अंदर है, और ये जो ज़ेब्रा है ये पिंजरे के बाहर है। बाहर मतलब आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर। एक्टिविटी, टिक द करेक्ट आंसर। द फिशेज आर इनसाइड द पॉन्ड और आउटसाइड द पॉन्ड। शिवन्या आप बताओ, ये जो फिशेज हैं ये पॉन्ड के इनसाइड हैं या आउटसाइड? Inside. Very good. So we will take the inside ones. The ducks are outside the pond or inside the pond? Inside. On side. हाँ, outside. Outside. Inside और outside, ये जो ducks हैं वो pond के बाहर है, इसलिए हम outside को टिक करेंगे। ये pond के अंदर नहीं है, इसलिए outside। अब आता है near और फार। नियर का मतलब होता है पास, नियर का मतलब होता है पास, और फार का मतलब होता है दूर। जैसे हम इस पिक्चर में देखेंगे तो ये जो बॉय है ये कार के पास है, इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे नियर। और ये जो लड़की है ये इस कार से दूर है, ये जो लड़की है ये इस कार से दूर है, इसलिए हम फार वर्ड का यूज़ करेंगे। राजू इज स्टैंडिंग नियर द कार, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि ये जो है वो कार के नियर है, पास है। एंड पिंकी इज स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम द कार। एक्टिविटी, सर्कल द डॉग दैट इज नियर द पॉन्ड। शिवन्या, इन दोनों में से कौन सा डॉग पॉन्ड के पास है, पॉन्ड के नियर है? इन दोनों में से कौन सा डॉग? वेरी गुड। तो अब हम इस डॉग को सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द बोट दैट इज फार अवे फ्रॉम। शिवन्या, इस बोट से कौन सी बोट फार है, दूर है? ये वाली। तो हम इस बोर्ड को टिक कर देंगे। नेक्स्ट कंपैरिजन का टॉपिक है ऑन अंडर, ऑन और अंडर। ये जो मंकी है ये पेड़ पर बैठा है, ऑन का मतलब होता है पर। दिस मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, ये मंकी ट्री पर बैठा है। ये जो फॉक्स है वो ट्री के नीचे बैठा है, अंडर का मतलब होता है नीचे। दिस फॉक्स इज सिटिंग अंडर द ट्री। एक्टिविटी, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जो भी सही स्टेटमेंट है, उसे हमें टिक करना है। द स्पैरो इज ऑन द ट्री। शिवन्या बताओ कि जो स्पैरो है वो ट्री पर है? यस। यस, तो हम इस सेंटेंस को टिक कर देंगे। बिकॉज द स्पैरो इज ऑन द ट्री। द स्पैरो इज अंडर द ट्री। स्पैरो क्या ट्री के नीचे है? नो। यस। द काउ इज ऑन द ट्री। काउ क्या ट्री पर है? नो। द काउ इज अंडर द ट्री। काउ क्या ट्री के नीचे है? यस। यस, तो हम इसे टिक कर देंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक क्या टेबल के ऊपर है? यस। द बुक इज अंडर द टेबल। बुक क्या टेबल के नीचे है? नो। द डॉग इज ऑन द टेबल। डॉग क्या टेबल के ऊपर है? नो। द डॉग इज अंडर द टेबल। डॉग क्या टेबल के नीचे है? यस। वेरी। द कैट इज ऑन द अलमीरा। कैट क्या अलमीरा पर है? अलमीरा के ऊपर है कैट? यस। द कैट इज अंडर द अलमीरा। कैट क्या अलमीरा के नीचे है? नो। द रैट इज ऑन द अलमीरा।
रैट क्या अलमीरा के ऊपर है? No. द रैट इज अंडर द अलमीरा. रैट क्या अलमीरा के नीचे है? Yes. Very good. Now it is the last subtopic of comparison. Before, after and between. Before का मतलब होता है पहले. After का मतलब होता है बाद में. और between का मतलब होता है बीच में. जैसे mother is standing before the kid. Father is standing after the kid. And the kid is standing between his parents. Activity. Circle the hut that is between the two trees. शिवन्या, आप बताओ कि कौन सा हट ट्रीज के बीच में है? वेरी गुड. तो अब हम इस हट को सर्कल कर देंगे. In which of the following picture the mother is sitting between her children? शिवन्या, आप बताओ इन तीनों पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर में मदर अपने दोनों बच्चों के बीच में बैठी हुई है? वेरी गुड. This is better photo. Now here is an worksheet. Circle the smallest of the three. इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? कौन है? अब हम इसे सर्कल कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर. द बर्ड इज सिटिंग अबव और बिलो द क्लॉक. बताओ कि जो बर्ड है वो क्लॉक के ऊपर बैठी हुई है या क्लॉक के नीचे बैठी हुई है? क्लॉक के ऊपर. तो हम अबव को टिक कर देंगे. द फोटो फ्रेम इज़ अबव और बिलो द क्लॉक. जो फोटो फ्रेम है वो क्लॉक के ऊपर है या नीचे है? बताओ, ऊपर है या नीचे है? नीचे. क्वेश्चन नंबर 3. टिक द करेक्ट आंसर. द पपी इज इनसाइड द कैनल और आउटसाइड द कैनल. बताओ, पपी इनसाइड है कैनल के या आउटसाइड है? इनसाइड. वेरी गुड. द वुडन बॉक्स इज डैश दैन द चॉक बॉक्स. जो वुडन बॉक्स है वो चॉक बॉक्स से हैवियर है या लाइटर? हैवियर. तो हम हैवियर को टिक करेंगे. द फॉक्स इज नियर द ट्री और फार अवे फ्रॉम द ट्री. जो फॉक्स है वो ट्री के पास है या दूर है? पिक्चर को देखो. फॉक्स जो है वो ट्री के पास है या दूर है? दूर. वेरी गुड. सो द फॉक्स इज फार अवे फ्रॉम द ट्री. So the concept of comparison has been completed. So if you like our video, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon so that you get the notification of our latest videos.